at a 10% premium. So shareholders of Honest Limited will get 10,000 equity shares of rupees 100 each at 10% premium. 7% preference shareholders will get 10% premium, will be discharged at 10% premium by issuing 8% preference shares of rupees 100 each at par. Debentures of Honest Limited to be converted into equivalent number of debentures of Faithful Limited. Sundry debtors of Faithful Limited include 25,000 due from Honest Limited. Cost of liquidation amounting 4,000 were borne by Faithful Limited. Now here the Faithful Limited is taking over. Faithful Limited is taking over Honest Limited. यहाँ पे बेचने वाली कंपनी है, अपना बिजनेस जो बेच रही है वो है Honest Limited and purchasing company is Faithful Limited. Faithful is purchasing business of Honest. So Honest का हम लोगों को पूरा बैलेंस शीट empty करना है. You have to make all the items you have to transfer to Faithful Limited because Faithful Limited is purchasing the business of Honest Limited. We will calculate the PC. See 7% डिबेंचर के बदले हम लोग 10% प्रीमियम दे रहे हैं by issuing 8% डिबेंचर. Check out the amount of 6,75,000. 7% preference share of Honest Limited is 6,75,000. 6,75,000 में plus 10%. क्वेश्चन में दिया है देखो. Shareholders of Honest Limited to be issued 10,000 equity shares of rupees 100 each at 10% premium. 7% preference shareholders of Honest Limited will be discharged at 10% premium by issuing 8% preference shares of rupees 100 each. That means 7% preference share will be converted into 8% preference share and it will be discharged at premium, 10% premium. ठीक है, तो प्लस 10% आपको करना है. किसमें प्लस करना है 10%? जो अमाउंट यहाँ पे दिया है प्रेफरेंस कैपिटल का ऑनेस्ट लिमिटेड का, इसमें प्लस करो. 6,75,000 का 10% प्लस करो उसमें. 6,75,000 प्लस 67,500. आंसर इज 7,42,500. ओके, 67,500 plus 67,500 is equals to 7,42,500. पहला एंट्री आ गया 7,42,500. ओके, 7% को आपने क्या दिया? 7% इक्विटी शेयर्स को भी आप प्रीमियम पे दे रहे हो 10% प्रीमियम. 10,000 के शेयर्स, 10,000 शेयर्स at 100 each. 10,000 shares into 100 each plus 10% premium. 10 lakhs का 10% is 1 lakh. 10 lakh का 10% 1 lakh. ये दोनों प्लस करेंगे 11 लाख आएगा. दोनों फिर प्लस करना है. टोटल अमाउंट है पीसी का 18,42,500. So this is as per the net payment method. इसमें शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स मिल रहे हैं? ऑनेस्ट लिमिटेड के कितने शेयर्स थे उसके बदले में कितने शेयर्स हम लोग इश्यू कर रहे हैं. अगर ये डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अगर ऐसा डेटा हमें मिलता है एग्जैक्ट कितने शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स, तो इसको क्या बोलते हैं? नेट पेमेंट मेथड. पीसी एज पर नेट पेमेंट मेथड. हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? देयर आर 4 मेथड्स. पीसी के 4 मेथड हैं. परचेज कंसिडरेशन के 4 मेथड्स हैं. एक है लमसम मेथड, एक है नेट असेट मेथड, तीसरा है नेट पेमेंट मेथड एंड लास्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. देयर आर 4 मेथड्स ऑफ पीसी. This method, in this method, the exact number of shares are given in the question and it is both equity and preference are discharged at premium of 10%.
Now, in the books of Faithful Limited, we have to pass entries. Faithful is a purchasing company. Note down, Faithful is a purchasing company. First entry will be business purchase account debit. Business purchase account debit 18,42,500 to liquidator of Honest Limited 18,42,500. This is the amount of purchase consideration as per net payment method. Just check out here. This amount PC as per net payment method, this total amount will be written business purchase account debit to liquidator of Honest Limited. Narration being business purchased and PC payable by Faithful Limited to Honest Limited. It is still payable, not paid yet. Number 2, goodwill account debit, premises account debit. Okay, now their assets will become our assets. See here. Goodwill account debit 90,000. Premises you have to take 8,50,000. This figure given in the adjustment. Plant and machinery don't take 9 lakh. Take 7 lakh. Okay. Stock 2,70,000. Nothing is given in the extra amount. It's not given here. Then we will take stock 2,70,000. Sundry debtors 2,10,000. Bank 18,000. So all the assets will be debited in the books of Faithful Limited. So purchasing company will say these are my assets now. I'm paying you 18,42,000 for the assets and liabilities taken over. So I will take over all these assets. And what about liabilities? I will take over sundry creditors and debentures. Okay, statutory reserve also I have to maintain further. Okay, sundry debtors of Faithful Limited include 25,000 due from Honest Limited. So आपको इसमें से 25,000 माइनस कर देना है. 2,10,000 में से 25,000 जो ड्यू है, एक दूसरे को इन्होंने डेटर है. Faithful is a debtor. ओके, ऑनेस्ट लिमिटेड इसमें ऑनेस्ट लिमिटेड से 25,000 लेना बाकी है. सो इट इज इंटर कंपनी डेटर. पहले आप उसी कंपनी के कस्टमर थे, अभी आप उस कंपनी को आपने टेक ओवर कर लिया. पहले आप उसमें कंपनी में जाके गुड्स लेके आ जाते थे, कस्टमर्स थे आप. अभी आप उसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो, तो उनसे जो बाकी है पैसे 25,000 लेना बाकी है, तो आप लोगे उनसे, क्योंकि आपने पूरी कंपनी खरीद ली है, तो आप उनसे वो एडजस्ट कर लोगे, वो अमाउंट नील दिखाओगे. ठीक है, डेटर्स में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स 2,25,000, क्रेडिटर्स 1,50,000. बिजनेस परचेज जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आ जाएगा, तो बिजनेस परचेज अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे पीसी. बिजनेस परचेज के बाजू में आप लिख सकते हो परचेज कंसिडरेशन 18,42,500. जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आएगा सेकेंड एंट्री में, और जो क्रेडिट में है फर्स्ट एंट्री के जो क्रेडिट में है लिक्विडेटर ऑफ ऑनेस्ट लिमिटेड, उसको हम डेबिट में लिखेंगे थर्ड एंट्री में, क्योंकि लिक्विडेटर इज द रिसीवर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर एट प्रीमियम. प्रेफरेंस शेयर को हम प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलग से सेपरेटली बनाना है. लिक्विडेटर ऑफ ऑनेस्ट 18,42,500 to 8% preference share 7,42,500 to equity share capital 10 lakh
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख। ये आपको अमाउंट यहाँ पे पीसी में दिखेगा, देखो यहाँ पर। ओके देखो, लिक्विडेटर को डेबिट लिखना है। लिक्विडेटर इज द रिसीवर ऑफ दिस। लिक्विडेटर जी जो कंपनी है उसको आप दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर, लिक्विडेटर को आप इक्विटी शेयर्स दे रहे हो और प्रीमियम पे दे रहे हो, ठीक है। 7,42,500, 10 लाख, 1 लाख, ये तीनों अमाउंट क्रेडिट में दिखाना है। जो पीसी में अमाउंट लिखा हुआ है वही हमें क्रेडिट में दिखाना है, ठीक है। और उसके डेबिट में हु इज द रिसीवर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, किसको मिल रहा है? हु इज द रिसीवर? डेबिट द रिसीवर, लिक्विडेटर ऑफ ऑनेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट to 8% preference share 7,42,500 to equity share capital 10 lakh to security premium account 1 lakh. Who is the receiver? Liquidator is the receiver. Liquidator of Honest Limited. Honest Limited is getting close, right? So this is the PC amount which will be paid by the Faithful Limited. Purchasing company will pay PC purchase consideration to Honest Limited. Okay, so this is the entry number 3. So 1, 2 and 3 are very interlinked with each other. Now in this case there is a statutory reserve. I will tell you where it is. हाँ बुलजी भैया, अब देखो यहाँ पे स्टेट्यूटरी रिजर्व है। अगर क्वेश्चन में स्टेट्यूटरी रिजर्व बैलेंस शीट में दिखता है तो हम लोगों को वो स्टेट्यूटरी रिजर्व आगे मेंटेन करना है। कौन सी कंपनी क्लोज हो रही है बेटा? कृति, कौन सी कंपनी क्लोज हो रही है? Honest Limited. Okay, Honest Limited is getting closed. Who is taking over? Faithful Limited. ये जो कंपनी है राइट साइड में, Faithful Limited, it is taking over the Honest Limited. Okay, so this statutory reserve we have to maintain in the next year also. कंपनी बंद हो जाएगी इसका मतलब ये नहीं है उसको मेंटेन नहीं करना। कंपनी को आप टेक ओवर कर रहे हो तो आपको उसका स्टेट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना है। मतलब फेथफुल लिमिटेड को स्टेट्यूटरी रिजर्व 40,500 का मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो एंट्री क्या आएगा? टेल मी द एंट्री। हु विल टेल मी? हर्षवीरा? Harshvira, you can tell me the adjustment. First, amalgamation adjustment account debit 40,500 to statutory reserve account 40,500. Maintaining the statutory reserve in the purchasing company. Now, 10% of debentures in Honest Limited, इसका भी एक एंट्री है, आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4, debentures of Honest Limited to be converted into debentures of Faithful Limited। नंबर 4 वाली एंट्री पढ़ो अच्छे से। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर के बदले में डिबेंचर्स न्यू कंपनी के मिलेंगे, ओल्ड कंपनी के कैंसिल हो जाएंगे। ओल्ड कंपनी के डिबेंचर्स कैंसिल हो जाएंगे, न्यू कंपनी के डिबेंचर्स इशू होंगे। तो डिबेंचर जो था वही डिबेंचर 10% है तो 10%, देखो यहाँ पर कितने परसेंट का डिबेंचर है? 10% डिबेंचर 2,25,000। चलो बोलो एंट्री।
10% डिबेंचर्स ऑफ ऑनेस्ट लिमिटेड, डेबिट में कैंसिल होगा, ऑनेस्ट लिमिटेड का कैंसिल कर दो, डेबिट साइड लिखना 10% ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ऑनेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू, अभी न्यू क्रिएट कर रहे हैं, ओल्ड वाले कैंसिल किए, डेबिट में लिखा, अभी क्रिएट कर रहे हैं, टू 10% डिबेंचर्स इन फेथफुल लिमिटेड अकाउंट 2,25,000। तो डेबिट में हमने ऑनेस्ट को लिखा और क्रेडिट में हमें फेथफुल लिमिटेड को लिखा, तो ये हो गया डेबिट में कैंसिल, ओल्ड डिबेंचर्स कैंसिल, इक्विवेलेंट डिबेंचर्स वी गॉट इट इन द न्यू कंपनी, दैट इज फेथफुल लिमिटेड। ओके अभी जो डेटर क्रेडिटर्स हैं, इंटर कंपनी क्रेडिटर और डेटर्स हैं, तो क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिटर और डेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। व्हाई इट इज कैंसिलिंग, एनीबडी? वी हैव टू cancel the intercompany debtors and creditors. You have taken over that company, now you will not take money from them. If they are your debtors, you will not take any money because you have taken over whole company. आपने पूरी कंपनी खरीद ली, आप उनसे क्या 25,000 लोगे अभी। क्रेडिटर इन फेथफुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डेटर इन ऑनेस्ट लिमिटेड अकाउंट, क्रेडिटर को क्रेडिट डेबिट कर दिया, डेटर को क्रेडिट कर दिया, मतलब ये एंट्री वहां पे ही कैंसिल हो गई। ठीक है, क्रेडिटर डेबिट साइड लिखा, क्रेडिटर क्रेडिट साइड होता है उसको डेबिट साइड लिख दिया, डेटर डेबिट साइड होता है उसको क्रेडिट साइड लिख दिया, तो कैंसिल हो गया वहीं पे एंट्री। अच्छा, अभी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर कंपनी फेथफुल लिमिटेड पे कर रही है, परचेजिंग कंपनी, ओल्ड कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है उसके वाइंडिंग अप चार्जेस वो लोग भर रहे हैं फेथफुल लिमिटेड, सो यू विल से इट इज अ गुडविल। ओके, तो आप कंपनी के अकाउंट में लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपने भरे 4,000 रुपए। whenever purchasing company pay liquidation expenses, they are supposed to pass this entry. ओके, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मुझे लगता है, आपको क्या लगता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किसको पे करने चाहिए? ऑनेस्ट लिमिटेड को पे करने चाहिए, लेकिन अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कंपनी पे कर रही है, परचेजिंग कंपनी पे करती है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ दिस इज द बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट इसको बोलते हैं। नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल्स, असेट्स में नॉन करंट असेट्स पहले आएगा, फिर करंट असेट्स, गुडविल इंटेंजिबल असेट्स के अंदर जाएगा, नोट्स टू अकाउंट में आप डिटेल में यहाँ पे उसको डिस्प्ले करोगे। ओके, समझ में आया सबको?
एंट्री नंबर 1, पहले आपको नेट पेमेंट मेथड से करना है. This is as per net payment method because exact data is given. How many shares? 10,000 shares, and how many preference shares will be issued in PC. So against the PC, how many shares will be issued, that is given in the question. So we will apply net payment method. If no data is given, then apply net asset method. Okay. Now in the Excel sheet only we will write particulars. First, point number 2. Shareholders of Honest Limited to be issued 10,000 equity shares of rupees 100 each at 10% premium. Security premium. Total 11 lakhs. Preference share capital 8% now. पहले 7% था, उनको 8% में कन्वर्ट कर दिया है. $7,42,500. Total of all three. $11 lakh plus 7.7 lakh 42, 18 lakh 42,000. So this is business purchase to liquidator of Honest Limited. Now this PC will be paid by the Faithful Limited.
It will be paid by Faithful Limited to Honest Limited. Okay. So this is the PC amount. We will pass the entry of PC in the business purchase account. Okay. So this is a purchase of business of 18,42,000. So here you are not purchasing anything. You are purchasing all the assets and liabilities of company. So PC entry will come in the books of Faithful Limited. In the books of first entry will be business purchase account debit. To liquidator of Honest Limited account being purchase consideration payable. Payable means it is still pending. Payable being purchase consideration payable. What is the amount? 18,42,000. Okay, so we will mark it in this way. Now this is in the debit, it will come in the credit. When you acquire the assets of company, it will come in the credit. What will be the entry? All the assets will be taken over. What are the assets? All the assets and liabilities are taken over at book value except the following, which were revalued. Only premises and plant and machinery was revalued. Premises and plant and machinery का ये वैल्यू लेना है 8,50,000 और 7 लाख. गुडविल जो है वो 90,000 आप ले सकते हो बुक वैल्यू पे. पहले गुडविल लीजिए. असेट्स को डेबिट करना है. गुडविल ऑनेस्ट लिमिटेड के लेने हैं. ठीक है. फेथफुल लिमिटेड के अकाउंट में ऑनेस्ट लिमिटेड के असेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे. गुडविल अकाउंट डेबिट. व्हाट इज द अमाउंट? 90,000. Goodwill account debit 90,000. एडजस्टमेंट में प्रेमाइसेस दिया है. नंबर 2 प्रेमाइसेस और नंबर 3 प्लांट एंड मशीनरी. प्रेमाइसेस का ये जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया है रीवैल्यूड फिगर ये लेना है. प्रेमाइसेस 8,50,000. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी
7 लाख। उसके बाद दिया है स्टॉक 2,70,000। स्टॉक के बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स। बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स है आपका 2,10,000 एंड बैंक अकाउंट 18,000। ओके, अब हम लोग को लिखना है टू साइड में नरेशन टू। बैलेंस शीट में डिबेंचर ले सकते हो आप और सन्ड्री क्रेडिटर्स। टू 10% डिबेंचर्स, $2,25,000 to sundry creditors, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,50,000। हाँ मैं सेंड करूंगी। यस श्योर। अब नीचे आएगा ये जो बिजनेस परचेज डेबिट में था फर्स्ट एंट्री में, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। $18,42,000। इसको मैंने सेम कलर में कर रही हूँ, ब्राउन। ठीक है, तो जो बिजनेस परचेज डेबिट में था वो क्रेडिट में आ गया। ओके, जो आपको यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है वो यहाँ पे अभी क्रेडिट में आ गया है। ओके, अभी ये जो आपको क्रेडिट में दिख रहा है फर्स्ट एंट्री में, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आ जाएगा। अब लिक्विडेटर रिसीव करेगा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। लिक्विडेटर को पीसी के बदले में शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, कैश नहीं मिल रहा है। इसको एक हाईलाइट करके कोई भी कलर रखती हूँ मैं, ग्रीन। लिक्विडेटर इज द रिसीवर, being assets and liabilities taken over at agreed value. Now this will come, green में जो है आपको वो यहाँ पे लिखना है। लिक्विडेटर को डेबिट करना है, 2 निकाल दो। लिक्विडेटर को डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर। व्हाट इज द अमाउंट? देखो यहाँ पे अमाउंट जो है सेम अमाउंट यहाँ पे लिखना है, 18,42,000 डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट से डेबिट में आ गया। टू क्या लिखोगे आप? लिक्विडेटर टू क्या दे रहे हो लिक्विडेटर को? देखो यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पे देखना है,
अब liquidator is the receiver, debit the receiver, what the receiver is receiving, receiver will receive equity capital, security premium, preference capital. सेम का सेम यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है 2, ठीक है। तो ये तीनों अमाउंट मैंने यहाँ से देखकर पीसी के अमाउंट जब मैंने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट से मैंने तीनों का पेमेंट कर दिया है। यानी कि लिक्विडेटर को रिसीव करेगा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। नरेशन में लिखेंगे बीइंग लिक्विडेटर of Honest Limited received equity shares and preference shares against purchase consideration next स्टेटूटरी रिजर्व को हम लोग को मेंटेन करना है। एंट्री आएगा अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटूटरी रिजर्व अकाउंट what is the amount, check it, statutory reserve Honest Limited 40,500, okay। being statutory reserve to be maintained by Faithful Limited, to be maintained बस। और क्या एंट्री आएगा, अमलगमेशन एडजस्टमेंट हो गया, डिबेंचर्स कैंसिल करके दूसरे इक्विवेलेंट डिबेंचर्स इशू करने हैं। 10% डिबेंचर्स ऑफ 10% debentures of Honest Limited debit amount 2,25,000 to 10% debentures of Faithful Limited account. Old debentures cancelled, new debentures, equivalent debentures issued, being old debentures cancelled,
and new debentures issued. ऑनेस्ट लिमिटेड का जो डेबिट में लिखा है, डेबिट में जब भी डिबेंचर डेबिट में आ जाता है वो कैंसिल हो जाता है. ओके. नेक्स्ट, अभी जो डेटर्स हैं उनको कैंसिल करना है. ऑनेस्ट लिमिटेड के डेटर्स और क्रेडिटर्स इन फेथफुल लिमिटेड. क्रेडिटर्स इन फेथफुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट. इंटर एडजस्टमेंट हो जाएगा. डेटर्स इन ऑनेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट. क्रेडिटर्स डेबिट में आ गया. क्रेडिटर यानी क्रेडिट में होता है. क्रेडिटर क्रेडिट साइड होता है, लायबिलिटी होती है, उसको डेबिट साइड लिखा यानी क्रेडिटर कैंसिल किया. और ऑनेस्ट लिमिटेड का डेटर्स को कैंसिल किया. डेटर्स को क्रेडिट साइड लिखा. डेटर्स डेबिट साइड होता है तो क्रेडिट साइड लिखा. मतलब डेटर्स भी कैंसिल और क्रेडिटर्स भी कैंसिल. दोनों कंपनी के हमने क्रेडिटर और डेटर को कैंसिल कर दिया. मतलब कोई भी किसी से पैसा नहीं लेगा क्योंकि कंपनी टेक ओवर करते हैं तो थोड़े पैसे जो क्रेडिटर डेटर के होते हैं वो हम माफ कर देते हैं. कंपनी आपकी हो गई तो आप उससे पैसे क्या दोगे उनको. ठीक है. आप उनको 25,000 क्यों दोगे, आपने पूरी कंपनी खरीद ली है अभी. नेक्स्ट, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो, परचेजिंग कंपनी पे कर रही है. गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. being liquidation expenses paid by purchasing company, paid by faithful limited. परचेजिंग कंपनी का नाम आप मेंशन कर सकते हो डायरेक्टली. अगर फेथफुल लिमिटेड ऑनेस्ट लिमिटेड के कुछ एक्सपेंसेस पे करती है तो मार्केट में उसका गुडविल बन जाता है. ठीक है. सेम अटेंडेंस. एनीबडी केम नाउ फॉर अटेंडिंग लेक्चर. अभी कौन आया था, टेल मी इन द चैट. Any difficulty in this sum? Any difficulty? Clear? Question number 35. You can take a screenshot. Clear? Okay. Gyaneshwari clear. Dhruv E. Jain.
You can minimize the screen. Okay. Okay. So PC will be paid by Faithful Limited to Honest Limited. I will scroll now so that you can take a screenshot. आपने इसका लिया स्क्रीनशॉट? अभी मैंने क्वेश्चन पे भी रखा था, क्वेश्चन का भी लिया स्क्रीनशॉट।